Hello. Hello. Good afternoon, students. Class 11th biology students. Good afternoon to you all. I welcome all the class 11 biology students in this first session of chapter 5 on 14th of May 2020. The name of the chapter is Morphology of Flowering Plants. This is the chapter 5 of your syllabus. Yes, all the biology students join in fast. I am Monica Malhotra, PGT Biology, from KV Push Vihar, New Delhi. I welcome all the class 11 biology students to study chapter 5 of their syllabus, that is Morphology of Flowering Plants. This is the first session of the chapter. We are going to start with the new chapter today. Yes? Okay, so before starting the chapter, you all must know what is morphology. Yes, morphology. ये term आपने पहले भी पढ़ी है in initial chapters, first and second chapter. So what is morphology? Morphology is the traits which are shown externally by the flower. It is the external appearance of the flower. So the traits which we can observe by the external appearance of a flower, of a plant, of any organism is called morphology. So here we are going to study about the morphological features of flowering plants. Okay. So in initial classes, in junior classes also, you have studied about the plants and the parts of the plants. So just a recapitulation of what you already know, which you have already learned. This is the parts of a flower. Sorry, this is the part of a flowering plant. तो आप ये देख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, उसके पार्ट्स आपके सामने हैं, ये सब पहचान रहे हैं आप. Every plant consists of a root system and a shoot system. Okay, so here you can see this is the root system which is beneath the ground, and here is the shoot system which is upright, which is above the ground. Okay, तो ये दो टाइप के सिस्टम्स हर प्लांट में होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, और बाकी सब उसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं. देखिए जो रूट सिस्टम है इसमें ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट आपको ये रूट सिस्टम में नजर आ रही है. ठीक है, ये शूट है, इट इज अपराइट, वर्टिकली अपराइट अबव द ग्राउंड. इस शूट में आपको देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है. यू कैन सी द लीव्स, ठीक है, विच आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रांच. ओके, दिस इज द ब्रांच फ्रॉम वेयर द लीव्स आर अराइजिंग. ठीक है, एंड here you can see there is a bud, flower bud, floral bud कहते हैं जिसको. ये देखो floral buds का पूरा ग्रुप है. ठीक है, they develop into a flower, right? Now these flowers, they undergo fertilization and they give rise to fruits. So these are the fruits. ये इसी flower से बने हैं fruits. ठीक है, then आपको दिख रहा है कि जहां से ये स्टेम के जिस रीजन से ब्रांच या लीफ अराइज करता है, ये रीजन, इसे क्या बोलते हैं? नोड. दिस इज कॉल्ड नोड. ओके, दिस इज वन नोड, दिस इज अनदर नोड, दिस इज अनदर नोड, दिस इज अगेन अनदर नोड, this is also a node. Okay, so between any two nodes, between any two successive nodes, the region which is between any two successive nodes is called internode. इसे इंटरनोड कहते हैं. दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बीच की जगह है जो, वो कहलाती है इंटरनोड. ओके, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्ड अराइज हो रही है. ठीक है, ये मेन स्टेम है और ये उसकी ब्रांच है. ठीक है, स्टेम और ब्रांच के यहाँ एंगल बनता है एक. ठीक है, इस एंगल से एक बर्ड अराइज हो रही है. इसे क्या बोलते हैं? ये एक स्पेशल टाइप की बर्ड है. अकॉर्डिंग टू द पोजिशन इट इज कॉल्ड एक्सियल बर्ड. दिस इज एक्सियल बर्ड. ओके, और ये जो बिल्कुल टर्मिनल लोकेशन पे अराइज हुई है बर्ड, इसे बोलते हैं टर्मिनल बर्ड. तो ये एक्सियल बर्ड और ये टर्मिनल बर्ड. बर्ड कैन बी क्लासिफाइड in two types on the basis of its position. This is axial position, so axillary bud. ठीक है, this is terminal position, so terminal bud. So I hope you have gathered the concepts, the basic concepts of a flowering plant, the root system and the shoot system. Okay, you all know when a seed germinates, जब एक seed germinate करता है तो उसमें से दो
थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, दो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है। वन स्ट्रक्चर which goes beneath the ground, below the ground is called radicle, and the thread-like structure which turns vertically upwards above the ground is called plumule. Okay, तो जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम को जनरेट करता है और प्लूम्यूल शूट सिस्टम को जनरेट करता है। ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट्स। Okay, after this we come to the detail of root system. अब हम रूट सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो रूट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। Yes, you can see in most of the dicotyledonous plants the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil. मैंने आपको बोला जब एक सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें से एक रेडिकल निकलता है जो ग्राउंड के नीचे चला जाता है, प्लूम्यूल निकलता है जो ग्राउंड से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो रेडिकल है वो जमीन से नीचे जाके क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है ये प्राइमरी रूट। रेडिकल फॉर्म्स द प्राइमरी रूट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। एंड दिस रूट इज ओनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। अब पहले तो हम यही जान ले कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स क्या होते हैं। आपको पता है प्लांट्स को हम उनके कोटिलेडन्स के बेस पर दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक टाइप है डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स और दूसरा टाइप है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। ओके, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, राइट। अब जिनके सीड्स में दो कोटिलेडन्स होते हैं वो डाइकॉट सीड्स हो गए और उन सीड से डाइकॉट प्लांट्स बनेंगे। जिन सीड्स में एक ही कोटिलेडन होता है वो मोनोकॉट सीड हो गया और उसमें उसको मोनोकोटिलेडनस प्लांट कहेंगे। अब आप पूछेंगे भाई ये कोटिलेडन क्या होता है। ओके, कोटिलेडन इज अ लीफ लाइक अपेंडेज व्हिच स्टोर्स द नरिशमेंट इन इट, ठीक है। एक लीफी अपेंडेज होती है जो सीड को एनवेलप करती है और ये न्यूट्रिशनल फूड को, न्यूट्रिशन को अपने अंदर स्टोर करती है, राइट। और सीड में जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। ओके, तो अब आप जब ये जर्मिनेट करते हैं सीड्स तो इनको इनिशियल नरिशमेंट जो है वो कहाँ से मिलती है, कोटिलेडन से मिलती है, राइट। तो अब देखिए डाइकॉट प्लांट्स में दो कोटिलेडन्स हैं और मोनोकॉट प्लांट्स में एक ही कोटिलेडन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, डाइकॉट प्लांट में क्या आएंगे, सनफ्लावर, देन मस्टर्ड, ग्राउंडनट, पी, ग्राम, ठीक है, ऑल द पल्सेस दे ऑल आर डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, राइट। मोनोकॉट प्लांट में क्या आते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स जितनी घास फूस होती है वो सब मोनोकॉट प्लांट्स में आती है। ऑल द ग्रासेस, ओके, अबाउट ऑल द वेराइटीज ऑफ व्हीट, rice, ज्वार, बाजरा, they all are monocotyledonous plants. ये सब monocot plants होते हैं। So here lies the basic difference, which is on the basis of the number of cotyledons present in the seed of a plant. Okay? चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो रेडिकल था, रेडिकल ग्राउंड से नीचे चला गया और उसने प्राइमरी रूट बना दी, ठीक है। और ये प्राइमरी रूट फिर आगे डेवलप होती है और इसमें से सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। यू कैन सी दिस प्राइमरी रूट गिव्स राइज टू सेकेंडरी रूट एंड दिस सेकेंडरी रूट लेटर गिव्स राइज टू, ये देखो ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है और सेकेंडरी से ये आगे निकली, इसे बोलेंगे टर्शरी रूट। ओके, this is a tertiary root. So the root system in dicot plants, it consists of primary root, then the secondary root and then the tertiary root. Okay, so ये root system जो है, ये roots जो हैं ये फैल जाती हैं पूरी ground के नीचे, ये absorptive surface area को increase करती हैं, they help the plant to absorb the maximum water as well as nutrients, the minerals from the soil. Okay, so mustard plant, it's an example of dicotyledonous plant. ये mustard plant की रूट दिखाई गई है आपको, ठीक है, जिसमें प्राइमरी रूट है जो सबसे पहले ओरिजिनेट होती है, उससे सेकेंडरी रूट बनती है, फिर उससे टर्शरी रूट बनती है। So here is the root system in dicotyledonous plants. Now what about the root system in monocotyledonous plants? कभी आपने कभी ग्राउंड से घास को उखाड़ के उसकी रूट देखी? अगर आप ग्राउंड से आपने कभी घास उखाड़ी हो और उसकी रूट देखी हो तो आपने देखा होगा कि वो रूट इस तरह की होती है। Yes, this is the root system found in monocotyledonous plants. Okay, this type of root is called fibrous root. क्या बोलते हैं इस रूट को? Fibrous root.
So this whole root system is called fibrous root system. क्या खासियत है इस root system की? In monocotyledonous plants, the primary root is short-lived. Radicle से जो सबसे पहले रूट निकलती है, जब रेडिकल जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट होता है, रेडिकल बनता है, जमीन के नीचे जाता है, तो सबसे पहले जो रूट निकलती है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं, ठीक है ना? तो जो घास होती है या मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, उनमें प्राइमरी रूट जो है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, ओके? बहुत जल्दी ही मर जाती है वो रूट, और अपनी जगह वो कौन सी रूट्स को रिप्लेस करती है? It replaces a bunch of roots, similar type of thread-like roots, which arise from the node near the ground. Okay, so the primary root which develop from the radicle in monocot plants, it is very short-lived and it is very soon replaced by a large number of similar sized roots arising from a common point. ये common point कौन सा है? ये common point है from the base of the stem. स्टेम के बेस से पूरा बंच निकलता है रूट्स का, और वो ग्राउंड के नीचे फैल जाता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है, पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में प्लांट को हेल्प करता है, ठीक है? सो दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम. इट इज फाउंड इन व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा and all the grasses. So this all the grasses they have fibrous root system. समझ में आ गया आपको ये? चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं आगे रूट सिस्टम में एडवेंटिशियस रूट्स. तो अभी तक मैंने आपको बताया हमने दो प्रकार की रूट्स पढ़ी. सबसे पहले हमने पढ़ा यस व्हिच रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम व्हिच इज फाउंड इन डाइकोटिलेडनस प्लांट्स. देन वी स्टडीड अबाउट द fibrous root system which is there in monocotyledonous plants. Now there is another type of root system called adventitious root system. Now adventitious root system ये किसी भी एक टाइप के प्लांट्स में नहीं पाया जाता. ऐसा नहीं कह सकते ये मोनोकॉट्स में होता है कि डाइकॉट्स में होता है. ये सभी प्लांट्स में, किसी भी प्लांट में मोनोकॉट या डाइकॉट में पाया जा सकता है. तो एडवेंटिशियस रूट्स होती क्या है? ध्यान से सुनिए. एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो कोई एडेड एडवांटेज प्रोवाइड करती है. उनके नाम से क्या पता चलता है? एडवेंटिशियस रूट्स. दे प्रोवाइड सम एडेड एडवांटेज टू द प्लांट. कैसे? देखिए ये वो रूट्स है जो रेडिकल से अराइज नहीं होती. हमने अभी तक जो टैप रूट और फाइब्रस रूट पढ़ी, दे अराइज फ्रॉम द रेडिकल, ओके? बट दीज एडवेंटिशियस रूट्स दे डू नॉट अराइज फ्रॉम द रेडिकल, and instead of arising from the radical they arise from any other plant, any other part of the plant. प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती हैं, बस रेडिकल से अराइज नहीं होती. उन्हें हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. In some plants like grasses. अब grasses क्या है? ये तो है monocots. Banyan tree क्या है? It's a dicot, है ना? तो grasses, monstera plants, banyan tree, इन सभी में जो roots होती हैं, they arise from the parts of the plant other than the radicle, and such roots are called adventitious roots. These roots have specialized purpose in the plants in which they arise. Okay? For example, यहाँ first example grass है. ग्रास सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, तो मैं आपको ग्रास के ही एग्जाम्पल लेकर उसका डायग्राम दिखाना चाहती हूँ. ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ग्रास. आपको पता है ग्रास जो है इट रन्स, ठीक है? वो फैलती है, पूरी स्प्रेड होती है बहुत जल्दी ग्राउंड में, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द रनर. जो रन करता है, जो एक पॉइंट से अगले पॉइंट तक बड़ी तेजी से फैल जाता है प्लांट, उसको रनर कहते हैं. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? लॉन में लगाने वाली ग्रास का ये मैंने एग्जाम्पल दिखाया है. इट इज अंडर द कैटेगरी रनर, ठीक है? आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ये इसका ये नोड है, ठीक है? ये एक नोड है, यहाँ से ये इंटरनोडल डिस्टेंस निकला, ठीक है? दूसरी नोड है, राइट? अब देखिए यहाँ पे जहां जो भी इस ग्रास की नोड ग्राउंड को टच करती है, वहां नोड से क्या निकल जाती है? रूट्स निकल जाती है, ठीक है? And these roots, as they are arising from the node, they are not arising from the radical. That is why such roots are called adventitious roots. ठीक है, देखिए लेबल भी किया हुआ है. These are the adventitious roots of the grass. The scientific name of the grass is cynodon. Okay? तो अब देखिए ग्रीन लीव्स दिखाए हैं ग्रास के. ये इसकी एरियल ब्रांचेस हैं. एरियल ब्रांचेस मतलब जो अपराइट होती हैं, एयर में होती हैं, अबव द ग्राउंड होती हैं, ठीक है? और ये उसकी नोड है एक ग्रास की, ये दूसरी नोड है, और बीच में डिस्टेंस हुआ इंटरनोड. ओके? तो ये इंटरनोड के थ्रू रन करती है, ये आगे आगे फैलती है ग्राउंड में.
और जहां भी नोड टच करती है ग्राउंड को वहां पर इट गिव्स राइज टू रूट सिस्टम, एंड सच रूट सिस्टम इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। हम और भी बहुत टाइप के एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, prop roots, tilt roots, different adventitious roots are there which we will study in detail ahead. Okay, now we move on to the next topic. I hope adventitious roots are clear to you. These roots do not arise from radical, and instead of arising from radical it arises from any other part of the plant. चलिए अब हम देखते हैं एडवेंटिशियस रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल रूट का आपको फंक्शन पूछना चाहती हूँ। एक रूट का क्या फंक्शन होता है प्लांट में? बिल्कुल, जो रूट है वो प्लांट को सॉइल के अंदर एंकर करती है, पकड़ के रखती है, सॉइल में उसको खड़ा करती है। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। You know, soil is a reservoir of water and minerals. So root system helps in absorbing the water and minerals from the soil. ठीक है। तो ये दो फर्स्ट टू मैंने आपको जो फंक्शन बताए ये तो नॉर्मल रूट के होते हैं। ठीक है, रूट के ये बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट्स भी ये परफॉर्म करती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एडवेंटिशियस रूट्स परफॉर्म करती हैं। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्या है? स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल। कई बार एडवेंटिशियस रूट्स जो है ये स्टोरेज का काम करती हैं। ठीक है, जैसे जैसे मूली, गाजर, इन सब में these are what? These are modified roots. ठीक है, carrots, radish, turnip, these all are modified roots. Okay, so they store food material in them. Then they also help in synthesis of plant growth regulators. कई प्लांट्स के अंदर जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उनमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनते हैं। अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की टर्म इंट्रोड्यूस तो हो गई है इस चैप्टर में, लेकिन आप इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? These are the biochemical substances produced in plants which help in regulating the growth of the plant. Okay, प्लांट में शूट का ग्रोथ, रूट का ग्रोथ, उसकी लीव्स का डेवलपमेंट, फ्रूट की डेवलपमेंट, फ्रूट का साइज बढ़ना, सब चीजों का, उसकी सेनिसेंस, उसकी डेथ होना प्लांट की, ये सब चीजों को कंट्रोल करते हैं कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो कि प्लांट के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, and these are called plant growth regulators. These may also be called plant hormones. इनको plant hormone भी कह दिया जाता है। ठीक है, आपने क्लास 10th में आप पढ़ के आए हैं ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ठीक है, जिब्रेलिन पढ़े हैं इनके बारे में, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। So these are the 5 plant growth regulators, the names of which you already know. You have studied in class 10th, right? तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी एडवेंटिशियस रूट्स बनाने में हेल्प करती हैं, राइट? चलिए अब हम टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम को एक बार फिर से डिटेल में रिवाइज कर लें। देखिए 3 प्रकार के रूट्स मैंने आपको बताई, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, नाउ टैप रूट इज वेरी प्रोमिनेंट इन डाइकॉट प्लांट्स, ये डाइकॉट प्लांट्स में ही पाई जाती है। फाइब्रस रूट्स आर प्रोमिनेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स, ये मोनोकॉट्स में होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स दे can be found in both monocot and dicot plants, दोनों में मिल सकती है आपको ये। Now primary roots जो टैप रूट्स होती हैं, इनकी प्राइमरी रूट्स दे ग्रो एंड दे बिकम स्टाउट। देखो यहाँ मूली दिखा रखी है, ये क्या है? दिस इज रेडिश, ये आप देख सकते हैं, इसका ये प्राइमरी रूट है, दिस इज प्राइमरी रूट एंड दिस इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन इट। ठीक है, अपने अंदर फूड को स्टोर करती है। तो जो रेडिश है इट्स अ टैप रूट, राइट? इसमें से सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स निकल रही हैं, तो प्राइमरी रूट गिव्स राइज टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। ठीक है, अदरवाइज आल्सो मैंने मस्टर्ड भी दिखाया आपको, मस्टर्ड की रूट वो भी प्राइमरी रूट और आगे सेकेंडरी और टर्शियरी को जनरेट कर रही है। तो जितने भी डाइकॉट रूट्स होती हैं दे आर डेवलप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट सिस्टम। ओके, नाउ फाइब्रस रूट्स, these fibrous roots develop from the lower node। ये देखिए ये बेस ऑफ द स्टेम है, स्टेम में लास्ट नोड है ये, और यहाँ से पूरा बंच रूट्स का निकल गया है, इसे क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट्स। ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन लेंथ एंड डायमीटर, इनका लेंथ और डायमीटर सेम होता है, जबकि यहाँ टैप रूट में क्या है? जो प्राइमरी रूट की लेंथ है वो मैक्सिमम होगी, इसका डायमीटर भी मैक्सिमम होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, टर्शियरी का उससे कम होगा, है ना? तो इस तरह से है। लेकिन फाइब्रस रूट में जितनी भी रूट्स हैं बंच में निकली हुई, उन सभी की लेंथ और डायमीटर सेम होता है, राइट? चलिए एडवेंटिशियस रूट की बात करें। दे डेवलप फ्रॉम ऑर्गन्स ऑफ द शूट सिस्टम, शूट सिस्टम के किसी भी ऑर्गन से निकल जाती हैं ये। ठीक है,
नीड नॉट अराइज फ्रॉम रेडिकल, ये रेडिकल से अराइज नहीं करती, ठीक है। इसीलिए ये स्पेशलाइज एडवांटेज के लिए होती है, प्लांट के अंदर कोई स्पेशलाइज फंक्शन करती है, इसीलिए इनका नाम एडवेंटिशियस रूट्स होता है, ठीक है। यहाँ देखिए पुदीने में दिखा रखी है मिंट, मिंट में भी ऐसे ही है, ये इंटरनोडल डिस्टेंस है और नोड से यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकल रही है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। So I hope now the three types of root systems are crystal clear to you. Okay, so we move on to the next topic in the root system. आज मैं आपको सिर्फ रूट सिस्टम पढ़ाऊंगी, बहुत इजी है, बहुत कुछ पहले पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन चैप्टर को हम धीरे धीरे स्टार्ट किया है, इसीलिए आज रूट सिस्टम ही पढ़ेंगे हम सिर्फ। उसी को आप डाइजेस्ट करो, उसी को रिवाइज करो और उसी के नोट्स बनाओ, ठीक है। चलिए we move on to the next topic now. Regions of the root. एक रूट में कौन कौन से रीजन्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, ठीक है। दिस इज द डायग्राम टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। एनसीईआरटी से लिया है मैंने ये, ताकि आप इसको आराम से रिलेट कर सके, ठीक है। ये एक रूट शो की है यहाँ पर। इस रूट में देखो कितने रीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसके एपेक्स से शुरू करते हैं, ठीक है। ये रूट का एकदम एपेक्स है, पॉइंटेड टिप है। ये जो पॉइंटेड टिप है रूट की, इसमें आप देख सकते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर चढ़ा हुआ है, ये रूट की प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये रूट कैप, ठीक है। ये रूट कैप है यहाँ पर, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन। अब भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि रूट को प्रोटेक्शन चाहिए, इसके टिप को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। इसके टिप को प्रोटेक्शन की इसीलिए बहुत जरूरत है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ का रीजन, which is the region of meristematic activity, it is there in the tip of the root. और अगर ये रीजन डैमेज हो जाए, इसके सेल्स यहाँ से टूट जाए, रीजन का ये रीजन यहाँ से डिटैच हो जाए, कट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो दिस रूट विल स्टॉप द ग्रोथ इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ग्राउंड में और नीचे ग्रो करना ही बंद कर देगी, क्योंकि इसकी मेरिस्टेमेटिक रीजन खत्म हो जाएगा, राइट। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो रूट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट टिश्यू, इसमें जो सेल्स हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, एंड दे नीड अल्टीमेट प्रोटेक्शन। सो देयर प्रोटेक्शन इज बिकॉज ऑफ द रूट कैप। रूट कैप पहला रीजन हुआ इसका मतलब रूट का। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। अब ये थिम्बल क्या होता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी में देखें, थिम्बल का मतलब होता है एक छोटा सा मेटल का कैप, एक ढक्कन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो उंगलियों पे पहना जाता है। जब हम सुई सिलाई का काम करते हैं, सिलने का काम करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उंगलियों की टिप्स डैमेज हो सकती हैं, then generally we wear thimble. Okay, so thimble is actually a metallic cap-like structure which helps us to cover our fingers. It is for the protection of our fingertips. Similarly, the root tip also needs protection. So the root tip is covered by a thimble-like structure which is called root cap. इसे root cap कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती है टेंडर एपेक्स को। टेंडर मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। इट इज प्रोन टू डैमेज, सो इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। देखिए सॉइल में जब रूट नीचे की तरफ उगती है तो उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। द इनिशियल जो बिल्कुल एंटीरियर रीजन पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल दे अंडरगो फ्रिक्शन, दे फेस फ्रिक्शन फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स। उनको सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कैपिलरी बनाते हुए नीचे की तरफ जाना पड़ता है। इस बीच बहुत चांसेस हैं कि वो डैमेज हो जाए सेल्स और वो आगे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ कर ही ना पाए, इसीलिए उन सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप की जरूरत है। ओके, बार बार मैं आपको मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, मेरिस्टेम ये टर्म्स यूज कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू व्हाट इज अ मेरिस्टेम। वैसे तो आपने 10th में पढ़ा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा है कि प्लांट में टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। बट मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द टिश्यू इन द प्लांट्स which keeps growing throughout the lifespan of the plant. ऐसा टिश्यू जो प्लांट की पूरी लाइफ में, जब तक प्लांट जिंदा है, वो ग्रो करता ही रहता है, डिवाइड करता ही रहता है। इट इज एवर डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द वन which keeps on dividing throughout the lifetime of the plant. और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके सेल्स
दे हैव वेराइटी ऑफ साइजेस, वेराइटी ऑफ शेप्स, ये फिक्स्ड शेप नहीं है इनकी, कोई फिक्स्ड फंक्शन नहीं है इनका, कोई, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड। फिक्स्ड फंक्शन नहीं है से मेरा मतलब है दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड। इनको कोई एक पर्टिकुलर काम अलॉट नहीं किया गया है। जैसे जो सेल्स लीफ का पार्ट बन जाते हैं वो फिर लीफ का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो सेल्स रूट का पार्ट बन जाते हैं वो रूट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द सेल्स विच आर अ पार्ट ऑफ flower, they do the functions of a flower. So every cell becomes committed to perform a particular function at some point of the life cycle of the plant. So when a cell becomes committed to perform a particular function, then we say the cell is now differentiated. Cell differentiate हो गया है, उसका साइज फिक्स हो गया है, उसका स्ट्रक्चर फिक्स हो गया है, शेप फिक्स हो गई है, और साथ ही साथ उसका फंक्शन भी फिक्स हो गया है। ठीक है, तो जब तक फंक्शन फिक्स नहीं होता किसी सेल का, तो कहते हैं हम कि वो सेल अनडिफरेंशिएटेड नेचर का है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जितने भी होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड नेचर के होते हैं। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड फंक्शन, दे जस्ट हैव टू कीप डिवाइडिंग एंड दे गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। ठीक है, वो डिवाइड करके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होता है भाई? परमानेंट टिश्यू वो होता है जो अपने फंक्शन में फिक्स हो गया है, जिसको एक फिक्स फंक्शन अलॉट कर दिया गया है। जैसे आपने परमानेंट टिश्यू पढ़े हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं, है ना, ये सब चैप्टर में आगे आएगा। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, सब कुछ सब पढ़ के आए, 10 में नहीं 9th में पढ़ा हुआ है आपने ये, राइट, क्लास 9th में पढ़ के आए हैं आप। तो आपको जस्ट बता दूं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, एक परमानेंट टिश्यू होता है जिसका फंक्शन फिक्स्ड है, स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है, और दूसरा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसका एक ही काम है, टू कीप ऑन डिवाइडिंग एंड टू कीप ऑन गिविंग राइज टू न्यू सेल्स, राइट। सो रूट के हम रीजन्स की बात कर रहे थे। सबसे पहला रीजन मैंने आपको बताया, एपेक्स पर रूट के रूट कैप प्रेजेंट होती है एंड इट इज कवरिंग, इट इज प्रोटेक्टिंग अ टिश्यू, the first region of the root which is called region of meristematic activity. चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. The cells of this region are very small. They are thin walled, but they have dense protoplasm. इनमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट रिच होता है, क्योंकि इनको एक्टिवली डिवाइड करना है। दे हैव टू एक्टिवली डिवाइड, और उसके लिए इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, इनके अंदर एनर्जी जनरेशन होनी चाहिए, राइट। दे डिवाइड रिपीटेडली, ये बहुत जल्दी, ये हमेशा डिवाइड ही करते रहते हैं, इनका एक ही काम है, जब तक प्लांट जिंदा है इनको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन सिर्फ रूट्स में ही होता है, ये शूट्स में भी होता है, ये इंटरनोडल डिस्टेंस में भी होता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है इट इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये हम आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ होता है। थर्ड रीजन देखिए, पहला रीजन रूट क्या पढ़ाया, दूसरा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ एक्टिव ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रही है सेल्स की। इसके पीछे चले हम, देयर इज अ रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, इससे पहले वाले रीजन, प्रॉक्सिमल मतलब इससे पहले वाला, इससे पहले वाले रीजन के जो सेल्स हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स हैं, वो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल्स को जनरेट करते रहते हैं। और आपको मैंने पहले भी शायद बताया ये कि जब एक पेरेंट सेल माइटोसिस सेल डिवीजन अंडरगो करता है तो दो डॉटर सेल्स बनाता है। इसमें कौन से टाइप की सेल डिवीजन चल रही है? माइटोसिस। Mitotic cell division में whenever a parent cell divides, it gives rise to two daughter cells. Okay, these two daughter cells have same chromosomal number. उनका क्रोमोसोम का नंबर तो सेम ही होता है पेरेंट जैसा, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आती, लेकिन चेंज किस में आती है? साइज में। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने, लेकिन दोनों डॉटर सेल में क्योंकि पेरेंट सेल का साइटोप्लाज्म आधा आधा बट गया है, इसीलिए वो छोटे साइज के हो गए। ठीक है, अब उनको क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू ग्रो, they have to again reach the adult size. Okay, तो ये रीजन ऑफ इलोंगेशन में यही हो रहा है। देखो, मेरिस्टेमेटिक रीजन में एक्टिव डिवीजन होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाता है, दो डॉटर सेल्स के बाद फिर आगे और डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बनते रहते हैं, राइट। लेकिन जो नए सेल्स बन रहे हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से, देयर साइज इज वेरी स्मॉल। नाउ दे विल स्टार्ट ग्रोइंग इन साइज, जब वो साइज में ग्रो करते हैं, देन दे ग्रो इन द रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ नए सेल बनते जा रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, तो ये रीजन बन रहा है। ये रीजन क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन।
नए सेल बने, उन्होंने ग्रोथ की, नए सेल बने, ग्रोथ की, और ग्रोथ करके वो रीजन ऑफ इलोंगेशन में पहुंच गए। ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन का अब फंक्शन देखिए क्या है। द सेल्स proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement, and they are responsible for the growth of the roots in the length. तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के रीजन के प्रोक्सिमल रीजन, उसके पास वाला रीजन क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके सेल्स अपने आप को ग्रो करते हैं, इलोंगेट होते हैं साइज में, और इनकी इलोंगेशन से रूट का लेंथ भी बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, कि रूट की इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये सबसे पीछे होता है रीजन, ग्राउंड के सबसे पास, यहाँ ग्राउंड होगा, ग्राउंड के सबसे पास रीजन है रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब इलोंगेशन के बाद सेल्स पहले डिवाइड हुए, नए सेल बने, हर एक सेल इलोंगेट हुआ, रीजन ऑफ इलोंगेशन में आया। अब इलोंगेट होने के बाद उसको फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करना है, उसको काम शुरू करना है अपना, ठीक है, जिसके लिए वो बना है। तो उसके बाद वो इस रीजन में फॉल करेगा, इस रीजन में आ जाएगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन की खास बात है, कैसे पहचानेंगे हम कि ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है। रीजन ऑफ मैचुरेशन हैज गॉट रूट हेयर। अब देख रहे हैं इसके ऊपर कितने सारे रूट हेयर हैं। दीज आर थ्रेड लाइक structures which arise from the roots, ठीक है, and these are called root hair. Their function is to increase the absorptive surface area. ये सरफेस एरिया को इतना बढ़ा देते हैं रूट के, ताकि मैक्सिमम सॉइल सरफेस से रूट्स जो है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, और प्लांट को वाटर और मिनरल्स एक्टिवली मिल सके। राइट, नाउ रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसके हम डिटेल पे आ जाते हैं, इस रीजन की बात करें हम। The cells of this elongation zone, ये elongation की जो zone है, gradually these cells differentiate and mature. ठीक है, जब ये cells differentiate हो जाएंगे, mature हो जाएंगे, then they will form region of maturation. Now I have already told you what is the process of differentiation. Differentiation का मतलब होता है when a cell is assigned a particular function to perform throughout its life. किसी सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया गया जो उसे पूरी लाइफ स्पैन में अपने निभाना है। राइट, व्हेन अ सेल बिकम्स कमिटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, देन द सेल इज सेड टू बी डिफरेंशिएटेड। वो प्लांट के एक पार्ट का हिस्सा बन गया और उसको उस प्लांट के उसी हिस्से का फंक्शन परफॉर्म करना है। अब वो कोई और फंक्शन नहीं करेगा, उसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन फिक्स्ड हो गया है। जब तक वो सेल जिंदा है उसको वही सब कंटिन्यू करना है। देन द सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में जितने भी सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो गए हैं। अब उनको रूट्स का फंक्शन परफॉर्म करना है। दे हैव टू कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड दे हैव टू सप्लाई इट टू द स्टेम। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलिए, नाउ दिस जोन is proximal to the region of elongation. Region of maturation is near to the region of elongation. From this region, some of the epidermal cells form very fine, delicate thread-like structures called root hair. अब सबसे बाहर की लेयर हम आगे पढ़ेंगे एनाटॉमी में। रूट की सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस लेयर के सेल्स जो हैं उनमें से रूट हेयर अराइज करते हैं और ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं रूट के। ठीक है, एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो अब आपको चारों रीजन समझ में आ गए। सबसे पहला रूट कैप है, ओनली फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। Second is region of meristematic activity, in which the cells actively divide because they are meristematic cells, undifferentiated cells. Then these cells, the new cells which are formed by a meristematic zone, they elongate in size. This is the region of elongation. They grow and elongate, increase the length of the root, and after growing, they become differentiated. They are committed to perform a particular function, and they form region of maturation, in which epidermal cells, they give rise to root hair. Root hair increase the absorptive surface area, and they help in efficient absorption of water and minerals by the root. So these are the four regions and their functions in roots. I hope बेटा क्या रिपीट करना है वो स्पेशली बोलो, मैंने अभी सब कुछ रिपीट कर दिया। गुड्डू यादव, कोई कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट आप रिवाइज करना चाहते हो? मैंने अभी सारा का सारा टॉपिक फिर से बता दिया, अभी भी कुछ डाउट है? चलिए, नाउ वी कम टू मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। रूट किस तरह से मॉडिफाइड है? ओके, रूट्स जो है कुछ प्लांट्स में, दे चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड दे बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस।
ठीक है। नाउ दीज फंक्शंस आर द फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स का नॉर्मल फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब करना वाटर और मिनरल को और उसको कंडक्ट करना शूट सिस्टम की तरफ। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एंकरेज ऑफ द प्लांट इन द सॉइल। ये दो तो रेगुलर फंक्शंस है। इसके अलावा इन सम प्लांट्स द रूट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सम मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन दोस प्लांट्स। ठीक है। ये मॉडिफिकेशंस जो रूट में है ये किन फंक्शंस के लिए होती हैं? These roots are modified for extra support of the plant, for storage of food in the plant, and even for respiration, for the gaseous exchange in the plants. And these particular functions are performed in specialized plants where these modified roots develop. Okay? अब हम देखते हैं कौन सी रूट्स हैं, कैसे डेवलप हो रही हैं, क्या डिटेल है इनकी। मॉडिफिकेशन इन द रूट्स। सबसे पहले हम कौन से टाइप की रूट की बात करेंगे? स्टोरेज रूट। कुछ रूट्स जो प्लांट्स के अंदर स्टोरेज का काम करती हैं, वो अपने अंदर स्टार्च या मॉइस्चर स्टोर कर लेती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हो रही है ये स्टोरेज रूट। आप सब खाते हैं इनको। कैरेट्स, बीट्स, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, ये सब क्या है? दीज ऑल आर स्टोरेज रूट्स in which roots are specially modified for the storage of starch and water. ठीक है। इनमें स्टार्च और वाटर स्टोर्ड होता है। ठीक है। और आपको पता है जितनी भी रूट्स नॉर्मली ग्राउंड के नीचे ही उगती हैं, है ना? ये देख रहे हो आप, ग्राउंड है ये, इसके नीचे ये सॉइल है, इसमें रूट्स उग रही हैं। ये देखो कैरेट है, ये टर्निप है, ये रेडिश है, ये बीट रूट है। ठीक है। और ये सारी मॉडिफाइड रूट्स हैं। दीज ऑल आर स्टोरेज रूट्स। ठीक है। और ये आप देखें सारी की सारी क्या है इसमें? कैरेट टर्निप ये सब क्या है? दीज ऑल आर टैप रूट्स। ठीक है। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, दे गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। ठीक है। स्वीट पोटैटो में जो रूट है एडवेंटिशियस टाइप की होती है। ठीक है। क्योंकि स्वीट पोटैटो आपको मैं बता दूं, इट इज नॉट अ रूट, इट इज अ सॉरी, स्वीट पोटैटो इज आल्सो अ रूट, तो इसमें एडवेंटिशियस रूट होती है। ठीक है। So tap root of carrot, turnip and adventitious root of sweet potato, they get swollen and they store the food. इन सभी में फूड स्टोर होता है। ये सब मॉडिफाइड रूट्स है। ठीक है। तो स्वीट पोटैटो याद रखना, इट इज अ मॉडिफाइड रूट एंड द पोटैटो विच यू ईट, दे आर द मॉडिफाइड स्टेम्स। ये डिफरेंस है। स्वीट पोटैटो रूट होता है और पोटैटो जो आप खाते हो आलू, दैट इज मॉडिफाइड स्टेम, दैट इज अ स्टेम। ओके। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ और मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हैं रूट्स में। क्रॉप रूट सबने देखा होगा, बैंगन ट्री। ठीक है। तो ये बैंगन ट्री है। आपको मालूम है बैंगन ट्री में जो लोअर ब्रांचेस होती हैं उनमें से ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नीचे की तरफ जाते हैं। दीज आर एरियल रूट्स। ठीक है। ये देखो ये लोअर ब्रांचेस हैं। ठीक है। स्टेम ब्रांच, स्टेम से जो ब्रांच निकली हुई है, और इस एडिशनल ब्रांच से ये जो ये वाली ब्रांच है, इसका काम ही ये है कि इसमें से एरियल रूट्स अराइज करती है। देखो ये हवा में है अभी रूट्स, दे आर ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। कितनी कमाल की बात है। ठीक है। ये देखो इसमें से ये एडवेंटिशियस रूट निकल रही है, एरियल रूट्स विच आर ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। जैसे ही जमीन को टच करती हैं, दे गेट इनटू द सॉइल। देखिए एरियल रूट्स ग्राउंड को टच करते ही इसमें रूट कैप बन जाती है। ठीक है। एंड दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। collection of aerial roots, they form strong pillars and they provide additional support to this voluminous banyan tree. This is a very heavy banyan tree. इसकी जो अपनी रूट्स हैं वो इसके वेट को सपोर्ट करने में, इसको न्यूट्रिशन देने में, वाटर और मिनरल्स देने में अब इतनी सपोर्टिव नहीं रही हैं, सफिशिएंट नहीं रही हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए इसको ये एडवेंटिशियस रूट्स की जरूरत है, प्रॉप रूट्स की जरूरत है। ठीक है। So prop roots grow down from the branches and on reaching the ground, they fix themselves to the soil. They provide additional support to the large branches of some plants like the banyan trees. ठीक है? So these are called prop roots. याद रखना ये आपकी NCERT में है, बहुत important है ये. Now next very important type of modification in root is stilt root. Stilt root are found in sugarcane, in maize. ठीक है? इनके अंदर पाई जाती हैं ये. Now stem of maize and sugarcane, they have supporting roots. Again these are supporting roots which come out of the lower nodes of the stem. ठीक है। आपको पता है ज्यादातर जो मेज शुगर केन सब प्लांट्स हैं ये एक्वाटिक मीडियम में पाए जाते हैं। ठीक है। ये ज्यादातर पानी रिवर पॉन्ड्स के पास होते हैं। ठीक है।
और वहां पे जो ग्राउंड है इतनी सॉलिड नहीं होती, तो इसीलिए इनकी रूट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सो दैट द स्टेम मे नॉट फॉल। ठीक है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए इनके पास ये स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट होते हैं। Now stems of maize and sugarcane, they have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem। ये देखिए, ये स्टेम है, ये इसकी नोड है। ठीक है, आप ये एक और नोड है। ठीक है, ये जो नोड है यहाँ से ये एरियल रूट्स निकल रही हैं। ठीक है, और यहाँ जो नोड आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द लोएस्ट नोड, सबसे नीचे की नोड है, ग्राउंड के सबसे पास है। यहाँ से ये देख रहे हैं आप, पूरा इसकी सरकमफ्रेंस में पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में ये रूट्स अराइज हो रही हैं, एंड दीज रूट्स आर गेटिंग इनटू द ग्राउंड। ठीक है, they are touching the ground, they are fixing themselves in the ground, and these are called the stilt roots। ठीक है, ये पूरा एक सर्कल फॉर्म कर लेती हैं। stilt roots are aerial adventitious roots। पहले ये एरियल ही थी, लेकिन एयर में थी, लेकिन उसके बाद ये नीचे ग्रो करके आ गई, और नीचे इन्होंने पूरा एक सर्कमफ्रेंस बना लिया है, एंड they grow obliquely downwards from the basal nodes of the main stem and fix firmly to the soil। ठीक है, सबसे नीचे की नोड से अराइज करती हैं, and they fix themselves into the soil। Such supporting roots are found in plants growing near the banks of rivers, ponds, etc। These are for additional support of the stem to the entire plant। Okay, so these stilt roots in this diagram are of Zea mays। Zea is the genus, maize is the species, and this is the biological name of maize plant। ठीक है, maize का example दिया है, and similar stilt roots are there in sugarcane also। ठीक है, अब इसके बाद हम और एक और मॉडिफिकेशन में रूट्स की पहुंच गए हैं, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द रूट्स फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं इनको हम। दीज रूट्स आर टेक्निकली कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स। ये न्यूमैटोफोर्स बहुत स्पेशल टाइप की रूट्स हैं, और ये कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स में उगती हैं, ऐसे प्लांट्स जो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करते हैं। स्वैम्पी एरियाज, मार्शी एरियाज जहां दलदल होती है, जहां का ग्राउंड फर्म नहीं होता, ऐसे एरियाज में जो प्लांट्स उगते हैं, they develop specialized roots called nematophores। Now in some plants like rhizophora, ये मैंग्रोव प्लांट यहाँ कॉमनली लिख दिया गया है, इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा। तो राइजोफोरा का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। In some plants like rhizophora, which grow in the swampy areas, marshy areas, many roots they come out of the ground and grow vertically upwards। Very strange। Normally we know that the roots always grow downwards, they grow beneath the ground, they are positively geotropic, ग्राउंड की तरफ उगती है, नीचे की तरफ जाती है। लेकिन देखिए, ये जो नेमेटोफोर रूट्स है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। देखिए, ये स्टेम है, स्टेम से रूट नीचे की तरफ ग्रो की, लेकिन नीचे से रूट्स जो है ये यू टर्न लेकर जमीन से ऊपर आ गई है। दे कम वर्टिकली अपवर्ड्स। देख रहे हो आप, ये रूट डाउनवर्ड रूट है, और इसमें से देख रहे हैं आप, ये सेकेंडरी रूट्स वर्टिकली अपवर्ड आ गई हैं। ठीक है, दे कम अप अबव द ग्राउंड, और जो ग्राउंड से ऊपर रूट्स आती हैं, दे हैव स्मॉल अपर्चर्स इन देम। ऐसा नहीं है कि इन्हीं में अपर्चर्स होते हैं, इवन द नॉर्मल रूट्स हैव अपर्चर्स इन देम, एंड दोज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जितने भी सॉलिड सरफेस होते हैं, वुडी सरफेसेस होते हैं प्लांट्स के, उनमें ऐसे अपर्चर पाए जाते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, एज इन लीव्स दे हैव स्टोमेटा, सिमिलरली ऑन वुडी सरफेसेस दे हैव लेंटिसेल्स। So you can see these small apertures on these vertical roots. These apertures are for the exchange of gases. They take in oxygen and they give out carbon dioxide. So that is the importance of these nematophores। ठीक है, so function क्या है nematophores का? They help to get oxygen for respiration। No, सुजीत, ये banyan tree में जो prop roots हैं, ये तभी ग्रो करती हैं जब ये ट्री बहुत ओल्ड हो जाता है, मतलब ये इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, इसकी जो प्राइमरी रूट सिस्टम है, जो इसकी जो अपनी रूट्स है, वो इसको सपोर्ट नहीं कर पाती। ठीक है, वीक होने लगती हैं, तो उसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए दीज प्रॉप रूट्स डेवलप इन द banyan ट्री। ठीक है, ओके। गुड्डू यादव इज सेइंग कि रीजन ऑफ इलोंगेशन फिर से बताना है। बेटा, रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है मेरिस्टेमेटिक जोन से ठीक ऊपर का रीजन है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में एक्टिवली सेल्स डिवाइड करते हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और वो सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन वो सेल्स जब
ग्रो, जब वो बन जाते हैं, जब एक बार वो डिवाइड होके छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, नाउ दे ग्रो इन साइज, ठीक है, वो ग्रो करते हैं और वो एडल्ट साइज जितना अपना साइज बना लेते हैं. नाउ द ग्रोइंग सेल्स विच आर elongating in size, they form the region of elongation. ठीक है, तो सबसे पहले रीजन ऑफ मैचुरेशन, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, और फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन आता है. समझ में आ गया? इलोंगेशन में वो सेल्स अभी अनडिफरेंशिएटेड ही है, सिर्फ अपने ग्रोथ कर रहे हैं, वो अपने साइज को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, नेमाटोफोर्स के बाद हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है. मैंने सिर्फ रूट्स ही पढ़ानी थी आपको, ताकि आप धीरे धीरे करके छुट्टियों में ये लेसन को पढ़ें. ठीक है, और हम धीरे धीरे आगे एडवांस करेंगे. आज आपको मैंने रूट्स पढ़ाई, ठीक है, कि रूट में प्राइमरी रूट क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी क्या होती है. ठीक है, ये उनका सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ अराइजिंग ऑफ द रूट्स. ठीक है, सेकेंड मैंने आपको रूट्स में डिफरेंशिएशन बताया ऑन द टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. ये दूसरा तरीका है रूट्स को डिफरेंशिएट करने का. ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड रूट मॉडिफिकेशन इन रूट्स बताई. स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं वो, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए वो हो जाती है मॉडिफाई. इसके अलावा और किसके लिए मॉडिफाई हुई? दे गेट मॉडिफाइड फॉर the storage, then they get modified for the gaseous exchange. ठीक है, and for the extra support के लिए जैसे स्टिल रूट्स हैं, प्रॉप रूट्स हैं, ये सब एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हैं. तो ये एडिशनल पर्पसेस के लिए जब ये मॉडिफाई हो जाती है, तो इनको हम एडवेंटिशियस रूट्स के एडिशनल बेनिफिट्स मानते हैं. ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द lesson today. This is the assignment for you. What is meant by modification of root? This is an NCERT question. What type of modification of root is found in banyan tree? Banyan tree में prop root होता है, आपको इसे explain भी करना है. ठीक है, then turnip, turnip में storage roots है. ठीक है, then mangrove trees, इसमें nematophores है. ठीक है, इसके बारे में आपको explain करना है. What are the different regions of the root? मैंने explain कर दिए चारों region. उनका function बताना है आपको region का, और diagram भी बनाना है. So this is a 5-mark question. Differentiate between primary and secondary roots. Whenever there is a question of difference, always you have to give example also. ठीक है, पूछा नहीं गया है लेकिन आपको example जरूर देना है. कहीं पे भी आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको explain करना है, यहाँ आपको example देना है. ठीक है, मैंग्रोव ट्री पूछा है तो यहाँ आपको example जरूर देना है. ठीक है, जहां कहीं जगह बनती है आपको example जरूर देना है. ठीक है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट सिस्टम में डिफरेंस, यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल देना है. ठीक है, सो ये सभी क्वेश्चंस को आज आप असाइनमेंट करिए. छुट्टियों में भी अपने असाइनमेंट के साथ रेगुलर रहिए. छोटा छोटा पोर्शन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अगर आप उसी दिन पढ़ लेंगे तो आप अगले दिन मुझसे डाउट पूछ पाएंगे. ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.